Wait, this actually looks like Spotify. Animated music player, dynamic songs, glass morphism UI, working search, smooth animation, and somehow this entire app was built using only HTML, CSS, JavaScript, and AI prompting. And yes, songs भी actual play हो रहे हैं. Search any artist and the app instantly fetches live music data. And honestly, ये प्रोजेक्ट एक्सपेक्टेड से वे बेटर निकला. वेलकम बैक टू डे 6 ऑफ 30 days 30 प्रोजेक्ट चैलेंज. सो टुडे हम बिल्ड करने वाले हैं एक फुल्ली मॉडर्न स्पॉटिफाई इंस्पायर्ड म्यूजिक स्ट्रीमिंग ऐप. बट ऑब्वियसली सिर्फ स्टैटिक क्लोन बनाना इंटरेस्टिंग नहीं होगा. सो आई वांटेड दिस प्रोजेक्ट टू एक्चुअली फील रियल. मतलब डायनामिक सॉन्ग्स, वर्किंग म्यूजिक प्रीव्यूज, एनिमेटेड प्लेयर्स, smooth transitions, glass morphism effects and a premium responsive UI. And honestly, अभी तक ये काफ़ी क्लीन लग रहा है. Now यहाँ पे most people AI के साथ मिस्टेक करते हैं. They write prompts like build Spotify clone बस एंड फिर आउटपुट बोरिंग आता है. बट एक्चुअल डिफरेंस डिटेल्स क्रिएट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इंस्टीड ऑफ जस्ट सेइंग म्यूजिक प्लेयर, आई गेव द प्रॉम्प्ट ए फुल्ली मॉडर्न स्पॉटिफाई इंस्पायर्ड म्यूजिक स्ट्रीमिंग वेब एप्लीकेशन. एंड आई ऑल्सो मैंशन द टेक स्टैक लाइक HTML, CSS and JavaScript with Deezer API integration. Why use Deezer API integration? Because it is free of cost and provide dynamic music data. In the prompt, I also mentioned that I need a premium Spotify style dark UI with smooth animations, glass morphism effect and a fully responsive design. I especially added features required like Spotify inspired sidebar navigation, sticky top navbar, dynamic trending song section, popular artist section, dynamic playlist section, popular artist section, album cart with hover animation, smooth horizontal scrolling, functional music player and so on. And I have mentioned this so that my AI will give me the prompt in a better way. And I also mention the tech stack like HTML, CSS, JavaScript and Deezer API. And the project should be beginner friendly, professionally designed, clearly structured, portfolio ready so that you can add in your resume. And I have given AI that I need proper integration setup and fully working front end and design style like modern Spotify dark theme, cinematic UI, smooth animations and premium music streaming feel. And the final project should feel like a modern music streaming platform with dynamic live music content and smooth user interactions. And honestly, AI तभी पावरफुल लगता है जब आप उससे प्रॉपरली कम्युनिकेट करते हो. Now I will send this prompt to the AI. As you can see, AI ने हमें complete project structure देना स्टार्ट कर दिया है along with the HTML, CSS and JavaScript code with the Deezer API integration as well. Now let's start the project from the scratch by following the AI steps. So guys, सबसे पहला हमारा काम है प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर क्रिएट करना. तो उसके लिए हम हमारे VS कोड में आएंगे और एक न्यू प्रोजेक्ट फोल्डर क्रिएट करेंगे नेम स्पॉटिफाई क्लोन. इसके अंदर ही हमारी सारी फाइल्स क्रिएट होगी. अब इसके अंदर आके हमें न्यू फाइल क्रिएट करनी है नेम index.html. बेसिकली इस फाइल में हमारा सारा HTML का कोड होगा. उसके बाद हमें एक और फाइल क्रिएट करनी है नेम style.css. यहाँ पे हमारी सारी डिज़ाइनिंग पार्ट होगा. एंड वी हैव टू क्रिएट द लास्ट फाइल विच इज़ script.js फाइल. इस बेसिकली यहाँ पे हम बैकएंड लॉजिक लिखेंगे थोड़ा बहुत जिससे कि हमारा प्रोजेक्ट फंक्शनल बन सके. और फिर हम एक न्यू फोल्डर क्रिएट करेंगे नेम assets.
इसी के साथ हमारा प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर कंप्लीट होता है। नाउ ऑब्वियसली फॉर ए Spotify clone we need a real music data. So instead of hard coding songs, I decided to use Deezer API. And honestly, API setup उतना डिफ़िकल्ट नहीं है जितना लगता है। So first, तो उसके लिए हम रैपिड API की वेबसाइट पे जाएंगे और एक न्यू अकाउंट क्रिएट करेंगे। तो हम रैपिड API की साइट पे आ गए हैं और अब हमें न्यू अकाउंट क्रिएट करने के लिए साइन अप बटन पे क्लिक करना होगा। और हम जैसे ही साइन अप बटन पे क्लिक करेंगे फिर हमें हमारी डिटेल्स डालनी है जिससे कि हम एक न्यू अकाउंट क्रिएट कर सकें। और यहाँ पे हमें क्या क्या डालना है, यूज़र नेम, ईमेल्स, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड एंड सबमिट बटन। फिर हम जैसे ही उसमें लॉगिन करेंगे हमारे सामने ऐसा इंटरफेस आएगा डीजर API का। फिर हमें गो टू प्लेग्राउंड बटन पे क्लिक करना है और हमारी API की जनरेट हो जाएगी। और आप देख सकते हैं हमारी API की जनरेट हो गई है। अब हम इस API की को हमारे जावास्क्रिप्ट कोड में यूज़ करेंगे जिससे कि API रियल टाइम डेटा फैच कर सके, जैसे कि सॉन्ग्स, आर्टिस्ट नेम्स, एल्बम कवर्स एंड इवन प्लेएबल प्रीव्यू। तो इसी के साथ हमारी API की जनरेट हो गई है। अब हम चलते हैं हमारे UI डिज़ाइनिंग पार्ट। सो इन द UI डिज़ाइनिंग सेक्शन वी हैव क्रिएटेड फर्स्ट ऑफ ऑल द साइड बार, then the navigation, then playlist, then trending songs and the floating movies player. One thing I really wanted was the premium Spotify feed. So I added smooth hover animations, glass morphism effects, glow effects and cinematic transition. And obviously the app is fully responsive too. मोबाइल पे भी honestly ये काफ़ी प्रीमियम लग रहा है। Now this is where things become interesting. इंस्टेड ऑफ हार्ड कोइंग सॉन्ग्स हम डायरेक्टली API से लाइव म्यूजिक फैच कर रहे हैं। सो एवरी सॉन्ग, एल्बम कवर एंड आर्टिस्ट डेटा इज कम्प्लीटली डायनेमिक एंड दिस पार्ट जनरली लुक्स सो सेटिस्फाइंग। नाउ जो हमने API की क्रिएट की थी वो हमें यहाँ पे पेस्ट करनी है जिससे कि वो लाइव म्यूजिक डेटा, एल्बम कवर, आर्टिस्ट डेटा सबको एक साथ फैच कर सके और ये प्रोजेक्ट कम्प्लीटली डायनेमिक लगे। I also added buttons like play pause, volume controls, next previous button and animated equalizer effect. So this actually feels like a real music streaming platform. Now our next step is to run the application. So right click index.html and click on open with live server button and you can see the website is live at port 5500. अब हमारी वेबसाइट पे ऑटोमेटिकली रीडायरेक्ट हो जाएंगे। सो गाइज हमारी एप्लीकेशन पूरी कंप्लीट हो चुकी है। अगर मैं किसी भी मूवी कार्ड पे आता हूँ तो वो मूवी कार्ड होवर एनिमेशन शो कर रहा है। और अगर मैं स्मूथ स्क्रोलिंग की बात करूँ तो स्मूथ स्क्रोलिंग भी हो रही है, अलॉन्ग विद द जो डेटा आ रहा है वो भी डायनेमिक आ रहा है। एंड जो हमारी एप्लीकेशन है वो भी फुल्ली रिस्पॉन्सिव लग रही है। एंड ऑनेस्टली अगर किसी ने मुझे कुछ मंथ्स पहले बोला होता कि HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट एंड AI प्रॉम्प्टिंग से इतना क्लीन प्रोजेक्ट बन सकता है, I probably won't believe it. And that's day 6 of my 30 days 30 project challenge. Honestly ये probably मेरा favorite front-end project में से एक है till now. If you enjoy this video, make sure to subscribe because today's project is going to be even crazier. See you in the next one.